محترم ناظرین آداب، عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ راشن کارڈ کے لیے عوام اب بھی پریشان، راشن کارڈ کی ویب سائٹ کھلتے ہی بند۔ نئے راشن کارڈز اور افراد خاندان کے ناموں کے اضافے کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز کیا گیا تھا، تاہم عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ سول سپلائز نے می سیوا کے ذریعے یہ نیا نظام متعارف کروایا، جس کا مقصد درخواست کے عمل کو سہل بنانا تھا، مگر تکنیکی خرابیوں اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ہزاروں درخواست گزار پریشانی میں مبتلا ہو گئے، جس سے عوامی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے می سیوا کے تعاون سے نئے راشن کارڈز اور موجودہ کارڈز میں افراد کے اضافے کے لیے آن لائن درخواستوں کی سہولت فراہم کی ہے۔ کمشنر سول سپلائز ڈی ایس چوہان نے ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے الیکٹرانک سروس ڈیلیوری اور می سیوا کے ٹیموں کو اس عمل کو سہولت بخش بنانے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیشنل انفارمیٹکس سینئر کو راشن کارڈ ڈیٹا بیس کی ویب سروس کو فعال کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، تاکہ پورے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ آن لائن سسٹم کے تحت جعلی درخواستوں کی روک تھام اور مستحق خاندانوں کو راشن کارڈ جاری کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 4 جنوری کو ریاستی کابینہ کی سب کمیٹی کی جانب سے طے کردہ نئے معیار اور طریقہ کار کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا، تاہم اس نئے نظام کی شروعات ہی مسائل کا شکار ہو گئی۔ متعدد درخواست گزاروں نے شکایت کی کہ پورٹل لانچ ہوتے ہی بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں شہری جو کئی برسوں سے راشن کارڈ کے منتظر تھے، ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہو گئے۔ می سیوا سینٹرز پر پہنچنے والے شہریوں نے الزام لگایا کہ انہیں آسان طریقے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، مگر پورٹل کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک درخواست گزار نے کہا کہ انہیں پھر سے مایوس کیا جا رہا ہے اور یہ تمام عمل صرف ایک اور دھوکہ لگ رہا ہے۔ صورتحال کو مزید خراب کرنے والی بات یہ ہے کہ سرکاری حکام کی جانب سے واضح ہدایت نہیں دی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پورٹل اگلے 10 سے 15 دنوں میں مکمل طور پر فعال ہو جائے گا، لیکن عوام کو ماضی کی تاخیر اور انتظامی بدحالی کی وجہ سے اس بیان پر شک ہو رہا ہے۔ BRS حکومت کے دوران یہ آن لائن سسٹم مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ درخواستوں کا عمل مسلسل جاری ہے۔ اب کانگریس حکومت نے اسے بحال کر دیا ہے، لیکن عوام کو اب بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے درخواستیں پرجا پالنا سیوا کیندر کے ذریعے وصول کی جا رہی تھی، لیکن وہ مراکز بھی غیر مؤثر ثابت ہوئے اور شدید عوامی تنقید کا نشانہ بنے۔ محکمہ سول سپلائز نے اس تکنیکی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ حکام نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ می سیوا سینٹرز پر غیر ضروری رش نہ لگائے اور سسٹم کے مکمل فعال ہونے تک کا انتظار کرے۔ جامع مسجد کمیٹی صدر محمد امتیاز احمد جامع مسجد و امام و خطیب مولانا محمد علی کی مشترکہ پریس کانفرنس کے مطابق مسجد نور مدرسہ مصباح الہدیٰ کاماریڈی میں ایک روزہ ختم نبوت تربیتی اجتماع 8، 9 یعنی آج اور کل 2 دن رکھا گیا ہے، جس میں مختلف علماء اکرام اس تربیتی اجتماع سے خطاب کریں گے اور سماج میں پیدا ہو رہے فتنے اور مسائل کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اس موقع پر جامع مسجد صدر اور امام و خطیب نے عوام الناس سے اپیل کی اس اجتماع میں شرکت کرنے کے خواہش مند حضرات جامع مسجد کمیٹی سے رابطہ پیدا کریں اور اس تربیتی اجتماع میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اس پریس کانفرنس میں جامع مسجد کمیٹی کے اراکین و دیگر عوام موجود تھے۔ گمراہ کن عقائد نظریات سے واقفیت سے اور ان کی روک تھام کے لیے شہر کاماریڈی بمقام مسجد نور مصباح الہدیٰ اندرا نگر کالونی میں 9 شعبان المعظم 8 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا 9 فروری بروز عشاء تک یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسہ رکھنے کا مقصد، ایک روزہ ورکشاپ کا مقصد یہ ہے
कि इसमें अपने तमाम नौजवानों को, स्टूडेंट को, तलबा को इसमें मदऊ किया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ नए नए फितने रूनुमा हो रहे हैं जो उम्मत मुस्लिमा के ईमान से खिलवाड़ करके नौजवानों को और उम्मत मुस्लिमा को मुर्तद कर रहे हैं। चुनांचे इसी सिलसिले को समझते हुए शहर कामरेड्डी के जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार अहबाब एक रोज़ा वर्कशॉप रखे हैं। उसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त की जाती है कि उस वर्कशॉप में पहुँचे। जिला कामारेड्डी में जात पात का इम्तियाज, दलित शख्स को मंदिर से बाहर निकालने का वाकया सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। जमाना बदल रहा है लेकिन जात पात का भेदभाव अब भी बरकरार है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया कामारेड्डी जिले के ताड़वाई मंडल के ब्रह्माजी वाड़ी गांव में पेश आया, जहां एक दलित शख्स को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। दलित शख्स को रैली रमेश ने बताया कि जब वो गांव के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में भजन में शामिल होने गया तो चिन्ना सैलू यादव ने उन्हें मंदिर में बैठने से रोक दिया और सबके सामने कहा कि वो यहाँ नहीं आ सकता। ये वाकया तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अंबेडकर दलित संगम यूनियन के कायदीन ने पुलिस में इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज कराई। ताहम मुतासरा शख्स का कहना है कि डीएसपी श्रीनिवास ने मुझसे तो पूछगछ की मगर सैलू यादव से कोई सवाल नहीं किया गया। मुतासरा दलित शख्स ने मुतालबा किया कि इस तौहीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। इस वाक़े पर मला महानाडु संगम और दलित संगम यूनियन के कायदीन ने भी सख्त एहतजाज किया। एमएलसी पोलिंग के फराइज पर मुकम्मल आगाही जरूरी, पीओस और एपीओस के तरबती क्लासेस पे जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की हिदायत। निजामाबाद, करीमनगर, मेदक और आदिलाबाद के मुश्तरका अजला पर मुश्तमिल असातिज़ा और फारिग तहसील अफराद के लिए होने वाले कानून साज कौंसिल इंतखाबात की पोलिंग 27 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हिदायत दी कि पोलिंग के अमल पर मुकम्मल आगाही हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ओहदेदार को कोई शुबा हो तो वो तरबियती क्लासेस में मौजूद मास्टर ट्रेनर से वजाहत हासिल करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि एमएलसी इंतखाबात में वोटिंग का अमल दीगर इंतखाबात से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यहाँ बैलेट पेपर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वोटिंग में ज़्यादा वक्त लग सकता है। ऐसे में सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाना इंतहाई ज़रूरी होगा। कलेक्टर ने पोलिंग शेड्यूल के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि पोलिंग का वक्त 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मुकर्ररा वक्त तक जो वोटर्स कतार में मौजूद होंगे उन्हें टोकन नंबर देकर वोट डालने का मौका फराहम किया जाएगा और पोलिंग से एक दिन पहले यानी 26 फरवरी को सुबह 8 बजे तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर रिपोर्ट करें। वहां उन्हें बैलेट बॉक्स और इंतखाबी मवाद चेक करना होगा और सरकारी गाड़ियों के जरिए अपने मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना होगा। पोलिंग के अख्तिताम पर बैलेट बॉक्स को करीमनगर में रिसेप्शन सेंटर में जमा करवाना लाजमी होगा। जिला कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए और किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की निगरानी में रहेंगे। पोलिंग के बाद तमाम तफसीलात रिकॉर्ड बुक में दर्ज करना और मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करना ज़रूरी होगा। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर्स हनुमंतु और वर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ऑफिसरों को पोलिंग के दिन की एहतियाती तदाबीर और जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह किया। DO గారిచే అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ గారిచే సెక్షన్ 26 RP యాక్ట్ 1951 ప్రకారము PRO గా లేదా PO గా నియమించబడి ఉంటారు। PRO మీన్స్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, PO పోలింగ్ ఆఫీసర్స్। సో అది కూడా ఈవీఎం బేస్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అది మొత్తం డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది। బట్ ఇది మనకి బ్యాలెట్ పేపర్ బేస్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత టైం టేకింగ్ ఉంటుంది। అదేవిధంగా సీలింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ అవ్వచ్చు, అదర్ ప్రొసీజర్స్ అనేది కొంత డిఫరెంట్గా ఉంటాయి। మీరు చాలా వరకు అంటే ఎలక్షన్స్లో ఏదో సపోర్టింగ్ స్టాఫ్గా చేసి ఉంటారు, అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు। బట్ పోలింగ్ స్టేషన్లో డైరెక్ట్గా అంటే కూర్చొని PO, APO డ్యూటీస్ చేసి ఉంటారు ఎవరు కూడా। కాబట్టి
కొంత మనకి పిఓ ఏపీఓ అనేవి స్టాట్యూటరీ జాబ్స్. అంటే ప్రీవియస్గా మీరు రిసెప్షన్ సెంటర్లోన, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో, తహసీల్దార్ ఆఫీస్లోని, సో ఈఆర్ఓ ఆర్ఓ ఆఫీసుల్లో చేసినా కూడా సో అది మీరు సపోర్టింగ్గా ఉండేవారు కాబట్టి మీ మీద డైరెక్ట్గా అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ అది ఫిక్స్ అయి ఉండదు. బట్ పిఓ ఏపీఓ అనేది కొంత స్టాట్యూటరీ జాబ్స్. సో ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే డైరెక్ట్గా మీరే రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बराबर तरक्की दूंगा, एमएलसी उम्मीदवार अल्फोंस नरेंद्र रेड्डी का बयान। आरमूर टाउन में कांग्रेस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार अल्फोंस नरेंद्र रेड्डी के हक में शानदार बाइक रैली निकाली गई। यह रैली कांग्रेस लीडर और आरमूर इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। कौमी शाहराह पर पहुंचने पर कांग्रेस यूथ लीडर्स और कारकुनान ने नरेंद्र रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां रैली टाउन की अहम सड़कों से गुजरते हुए अम्बेडकर चौराहे तक पहुंची, जहां कायदीन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि अल्फोंस नरेंद्र रेड्डी एक माहिर तालीम है और ग्रेजुएट वोटर्स उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने तमाम कांग्रेस कारकुनान से करीमनगर में मुनक़िद होने वाले नामजदगी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। अपने खिताब में एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी ने भी कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ पर उन्हें जो एतमाद है वो उस पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने वादा किया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में नए शोबे और कोर्सेस मुतारुफ कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आगाज़ किया जाएगा और नए भर्तियां करवाकर रोजगार के मौके पैदा करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ పట్టభద్రుల సమ్మేళనం, భారీ బైక్ ర్యాలీ మరి వినయన్ ఆధ్వర్యంలో చాలా అట్టహాసంగా జరిగింది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి బీఫామ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య చాలా సంబరంగా మరి వాళ్ళ మొట్టమొదటి మీటింగ్ నా జీవితంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి ఇక్కడ ఆర్మూర్లో జర్నీ కొనసాగించడం మరి నిజంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. వినయన్ అంటే విఎన్ అంటే వి నరేందర్, ఈ రకంగా మరి మా యొక్క జోడీ అద్భుతంగా ఉంది అని నేను భావిస్తూ ఒక మంచి మనసుతో అన్న ఈరోజు మరి ఇక్కడ అందరి కాంగ్రెస్ శ్రేణులతో మరి వాళ్ళ స్వాగతం పలకడం, ఇక్కడ పట్టభద్రుల సమ్మేళనం అద్భుతంగా జరగడం చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఖచ్చితంగా మరి రేవంత్ రెడ్డి అనకు ఈ యొక్క గెలుపు ఒక గిఫ్ట్ కావాలి. రాబోయే లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో మరి ఘన విజయం సాధించడానికి ఇది ఒక సెమీఫైనల్ లాంటిదిగా భావిస్తూ ఖచ్చితంగా ఘన విజయం సాధిస్తామని ఇప్పటికే సుమారుగా ఓన్లీ మా టీం 1,50,000 ఎన్రోల్మెంట్ చేయడం జరిగింది. वर्नी मंडल मोसरा गांव में गैर कानूनी पीडीएस चावलों की स्मगलिंग नाकाम, 25 कुंटल चावल जब्त। निजामाबाद इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा आईपीएस की हिदायत पर टास्क फोर्स एसीपी नागेंद्र चारी की क़ियादत में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया और सीएमएस टीम ने वर्नी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े मोसरा गाँव में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे 25 कुंटल पीडीएस चावल को जब्त कर लिया। ज़ब्तशुदा चावलों को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए वर्नी पुलिस स्टेशन के SHO और सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरमूर में बीजेपी कायदीन का जबरदस्त जश्न, दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कामयाबी पर खुशी का इजहार। आरमूर टाउन में बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने जबरदस्त जश्न मनाया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन कंचेटी गंगाधर, असेंबली कन्वीनर पाले राजू और टाउन सदर बालू ने खुशी का इजहार किया। कायदीन ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी का झंडा लहराना काबिल फ़ख्र लम्हा है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में भी आइंदा इंतखाबात में बीजेपी जीत हासिल करेगी और पार्टी का परचम बुलंद किया जाएगा। एरगटला में वजीर आला रिलीफ फंड से मुस्तैद को 56,000 रुपए का चेक हवाले किया गया। एरगटला मंडल मुस्तकिल में सीएम रिलीफ फंड के तहत लक्ष्मी को 56,000 रुपए का चेक हवाले किया गया। यह चेक इंदिरामा कमेटी के रुकन और सीनियर कांग्रेस लीडर नरसा रेड्डी और मंडल यूथ कांग्रेस लीडर सागर ने मुस्तहिक को दिया। इस मौके पर बालकोंडा असेंबली कांग्रेस इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार का शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने इलाज के बाद हॉस्पिटल के बिल जमा करवाकर ये रकम मंजूर करवाई। इस प्रोग्राम में डीसीसी डेलीगेट जीवन, कांग्रेस लीडर गंगाधर, एनगटी स्वामी, राजू, श्रीधर, संपत के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। सीपीआई लीडर सैलू की पेश की गिरफ्तारी पर सख्त मसम्मत की गई, कहा कि ये हरकत गैर कानूनी है।
सीपीआई जिला कमेटी के रुकन आरेपल्ली साइलो ने आज आर्मूर टाउन में मीडिया से बात करते हुए पेशी गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जरूरी अशिया की कीमतों को काबू पाने में मरकजी और रियासती हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमतों से नजरबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सीपीआई के कायदीन और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। అధికారంలోకి వచ్చాక ఇలా ప్రజలకు జీరో అకౌంట్ తెరవండి, నల్లధనాన్ని అరికట్టి ప్రతి పేదవాళ్ళ ఖాతాలో 15 లక్షల రూపాయల నగదు బదిలీ డబ్బులు వేస్తానని చెప్పి ఆశ చెప్పడంతో ఇలా గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు ఇలా ఎంతో ఆశతోని 15 లక్షల రూపాయలు వస్తాయనే ఆలోచనతో ఇలా జీరో అకౌంట్ తెరిస్తే ఇప్పటి వరకు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము జీరో ఖాతాలో ఒక్క రూపాయి కూడా వేసిన పరిస్థితి ఇలా మనము లేదని చెప్పనేసి మనకు స్పష్టమైంది. అలాగే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చిన నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇలా ఆపరేషన్ కాగార్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఇలా మావోయిస్టులను ఊచకోత కోసి ఇలా వాళ్ళ మీద మెరుపు దాడులు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాము. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।